یہ کہانی ایک لرزہ خیز سانحے سے شروع ہوتی ہے، جہاں ایڈوکیٹ سجاد میر کو ایک طاقتور سیاستدان کے بھائی رانا زبیر کے خلاف کیس لڑنے کی پاداش میں پورے خاندان سمیت بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس خونی کھیل میں سجاد میر کا 11 سالہ بیٹا عبداللہ میر شدید زخمی ہونے کے باوجود زندہ بچ جاتا ہے، جسے ایک ہمدرد ڈاکٹر خفیہ طور پر تحفظ کی خاطر سکردو کے دشوار گزار پہاڑوں میں مقیم قبائلی سردار یعقوب خان کے پاس بھیج دیتا ہے۔ یعقوب خان، جو خود حالات کا ستایا ہوا اور انسانیت سے بیزار شخص ہے، عبداللہ کے ننھے ذہن میں انتقام اور نفرت کا زہر بھر دیتا ہے اور اسے ویرا یعنی دہشت کا نام دے کر ایک سفاک قاتل کے طور پر پالتا ہے۔ 3 سال بعد 14 سالہ ویرا اپنے پہلے مشن میں رانا زبیر کو قتل کر کے اپنے گھر والوں کا بدلہ تو لے لیتا ہے، لیکن اس عمل میں اس کے دل سے رحم اور محبت جیسے جذبات مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب یعقوب خان کے ہاں بیٹی مرجان پیدا ہوتی ہے، جسے یعقوب خان اپنی انا کی خاطر ٹھکرا دیتا ہے، جبکہ ویرا اسے نفرت اور سختی کے ماحول میں ایک عجیب سے احساس کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یوں یہ قسط ایک معصوم بچے کے ویرا بننے اور ایک ایسے ماحول کی عکاسی کرتی ہے جہاں اب صرف طاقت اور انتقام کا قانون چلتا ہے۔ وقت کے بے رحم پہیے نے عبداللہ میر کو اب مکمل طور پر ویرا میں ڈھال دیا تھا، جو قراقرم کی سنگلاخ وادیوں میں یعقوب خان کا دستے راست بن کر ابھرا۔ یعقوب خان نے اسے نہ صرف جدید ہتھیاروں کے استعمال میں ماہر کیا، بلکہ اس کے دل میں یہ بات پختہ کر دی کہ جذبات مرد کی سب سے بڑی شکست ہیں۔ دوسری جانب یعقوب خان کی بیٹی مرجان اب بچپن کی دہلیز پار کر رہی تھی، مگر وہ اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی کی طرح پڑی بڑھی، کیونکہ یعقوب خان اسے اپنی توہین سمجھتا تھا۔ الماس خان یعنی کہ مرجان کی ماں ویرا کی شخصیت میں چھپے اس پرانے عبداللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہتی، مگر ویرا کی آنکھوں کی وحشت کسی کو قریب آنے کی اجازت نہ دیتی۔ ایک دن جب قبیلے کے کچھ مخالفین نے یعقوب خان کے ٹھکانے پر حملہ کیا تو ویرا نے اپنی جان پر کھیل کر نہ صرف یعقوب خان بلکہ ننھی مرجان کو بھی بچایا، جس نے پہلی بار ویرا کے پتھر دل میں ایک انجانی سی تڑپ پیدا کی۔ اس واقعے نے یعقوب خان کے اعتماد کو ویرا پر مزید مستحکم کر دیا، لیکن ساتھ ہی ویرا کے اندر ایک اندرونی جنگ کا آغاز کر دیا، جہاں ایک طرف یعقوب خان کی سکھائی ہوئی نفرت تھی اور دوسری طرف مرجان کی معصومیت۔ یوں کہانی انتقام کی آگ سے نکل کر اب تحفظ اور پیچیدہ انسانی رشتوں کے ایک نئے موڑ پر داخل ہو گئی، جہاں ویرا کو اپنی نئی پہچان اور پرانے ضمیر کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ یعقوب خان زخمی ہونے کے بعد اپنی موت کو قریب دیکھ کر ویرا یعنی عبداللہ سے خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان کی 16 سالہ بیٹی مرجان سے نکاح کر لے تاکہ ان کے خاندان کو ایک وارث اور تحفظ مل سکے۔ ویرا عمر کے بڑے فرق اور اپنی شفاف زندگی کی وجہ سے ہچکچاتا ہے، لیکن جب یعقوب خان اسے آپشن دیتے ہیں کہ یا تو وہ نکاح کرے یا پھر مرجان کا نکاح سنگ دل راگا سے کر دیا جائے گا، تو ویرا مرجان کو راگا کے ظلم سے بچانے کے لیے بادل نخواستہ حامی بھر لیتا ہے۔ دوسری طرف مرجان، جو بچپن ہی سے ویرا کو پسند کرتی تھی، اس فیصلے پر بے حد خوش ہے، باوجود اس کے کہ اس کی ماں الماس اور بھائی دلاور ویرا کی درندگی سے خوف زدہ ہیں۔ نکاح کے وقت ویرا کو اپنی اصل پہچان یعنی عبداللہ میر ولد سجاد میر ظاہر کرنی پڑتی ہے، جو اس کے لیے ایک کربناک لمحہ ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد مرجان جب ویرا کے گھر آتی ہے تو ویرا اسے اپنی نفرت اور بے رخی کا نشانہ بناتے ہوئے کمرے سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ اسے محبت یا خوشی سے نفرت ہے۔ تاہم رات کے پچھلے پہر جب وہ مرجان کو کرسی پر بے آرام سوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا انسانی ہمدردی کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اور وہ اسے اٹھا کر بستر پر لٹا دیتا ہے۔ ویرا خود کو یقین دلاتا ہے کہ وہ مرجان کی محبت میں کبھی نہیں آئے گا اور ہمیشہ ویرا یعنی دہشت ہی رہے گا، مگر مرجان کا معصوم حسن اور اس کی خاموش محبت ویرا کے پتھر دل میں انجانے تلاطم پیدا کر رہی ہے۔ یہ قسط ایک ایسی شادی کی عکاسی کرتی ہے جہاں ایک طرف معصومیت اور امید ہے تو دوسری طرف نفرت اور ماضی کے تلخ سائے۔ فجر کی اذان پر جب مرجان کی آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پا کر اسے احساس ہوا کہ ویرا اسے کرسی سے اٹھا کر یہاں لایا ہے، جس نے اس کے دل میں امید کی ایک نئی کرن روشن کر دی۔ دوسری جانب ویرا اپنے ماضی کے کرب اور والد کی دی ہوئی نماز کی نصیحتوں کو یاد کر کے شدید ذہنی اذیت کا شکار رہتا ہے۔ وہ خود کو عبداللہ کہلانے کے قابل نہیں سمجھتا اور مرجان کی دعاؤں اور توجہ کو سختی سے جھٹک دیتا ہے۔ اسی دوران یعقوب خان کی وفات کے بعد جب قبیلے کی سرداری کا مسئلہ اٹھتا ہے تو ویرا کثرت رائے سے منتخب ہونے کے باوجود اپنی جگہ راگا کو سردار بنوا دیتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اس عہدے کا اہل نہیں سمجھتا۔ شادی کو 1 سال بیت جانے کے باوجود ویرا ایک سخت چٹان کی طرح اپنی بے رخی پر قائم رہتا ہے، جبکہ مرجان اسے ایک عام اور نیک انسان سمجھ کر اس کی محبت کی طلبگار رہتی ہے۔
वो इस हकीकत से मुकम्मल बेखबर है कि इसका शौहर पसे पर्दा रागा और काल के लिए मुखबरी करने और बम बनाने जैसे खतरनाक काम करता है। एक दिन जब मरजान अपनी बहन गुल से अपनी अधूरी मोहब्बत का जिक्र कर रही होती है, तो वीरा गुस्से में कमरे में दाखिल होता है, मगर इसी लम्हे काल बदहवासी से आकर इतला देता है कि फौज ने रागा को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर ने वीरा की जिंदगी और कबीले के मुस्तकबिल को एक नए और संगीन बहरान में डाल दिया है। रागा की गिरफ्तारी के 3 माह बाद वीरा इसे छुड़ाने के लिए एक पुरखतर मंसूबा बनाता है। वो बराह रास्त हमले की बजाय रावलपिंडी की एक यूनिवर्सिटी के तलबा को यरगमाल बनाकर हुकूमत को सौदेबाजी पर करने मजबूर करने का प्लान तैयार करता है और इस मकसद के लिए यूनिवर्सिटी तक एक खुफिया सुरंग खोदने का काम शुरू करवाता है। इस जहनी दबाव और शदीद बर्फबारी में देर तक बाहर रहने की वजह से वीरा सख्त बुखार में मुब्तला हो जाता है। मदहोशी की हालत में वो पहली बार मरजान को अपने करीब आने की इजाजत देता है और इसकी गोद में सर रखकर अपने अंदरूनी कर्ब और तन्हाई का एतराफ करता है। मरजान, जो अपने शोहर की इस बदली हुई कैफियत पर निहाल थी, इसे दिले जाना पुकारते सुनकर उम्मीद से भर जाती है। अगली सुबह मरजान वीरा की खैरियत मालूम करने के लिए कबीले के ममनुआ इलाके यानी डेरे की तरफ चली जाती है, जहां वो अपनी आंखों से वीरा को एक जसूस के माथे पर गोली मारकर कत्ल करते देख लेती है। वीरा का ये सफाक रूप मरजान को अंदर से तोड़ देता है और वीरा भी सख्ती से एतराफ करता है कि वो एक दहशतगर्द और दरिंदा है, ताकि मरजान इससे नफरत करने लगे। मरजान रोते हुए अपनी माँ अलमास को सब बताती है, जहां इसे वीरा के दर्दनाक माजी अब्दुल्ला मीर के खानदान का कत्ल के बारे में मालूम होता है। मरजान को एहसास होता है कि यकूब खान ने एक मजलूम बच्चे के जहन में नफरत भरकर इसे दरिंदा बना दिया है। अपनी माँ की नसीहत पर अमल करते हुए मरजान अब इस तलख हकीकत को कबूल करके अपनी मोहब्बत और जिंदगी को एक समझौता बनाकर गुजारने का फैसला कर लेती है। वीरा के खतरनाक मंसूबे के तहत रागा 5 माह बाद फौज की कैद से आजाद होकर कबीले वापस आ जाता है, लेकिन वो अपने साथ लेफ्टिनेंट वजदान खान की बेटी वानिया को भी यरगमाल बनाकर लाता है। वीरा को रागा के बदले हुए और हाकमाना अंदाज देखकर शक होता है कि कहीं इसने फौज से हाथ तो नहीं मिला लिया। दूसरी जानिब वीरा मरजान को हुक्म देता है कि वानिया और रागा को खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी इसकी है और वो वानिया से जज्बाती लगाव न रखे। मरजान जब वानिया से मिलती है तो इसे मालूम होता है कि वानिया एक मासूम लड़की है जिसे जबरदस्ती अगवा किया गया है। दोनों में जल्द ही गहरी दोस्ती हो जाती है और मरजान को फौजियों के बारे में अपने बचपन के खौफ के बरअक्स वानिया बहुत मासूम लगती है। इसी दौरान एक रात वीरा की गैर मौजूदगी में एक नकाबपोश अजनबी मरजान के घर आता है और इसे बताता है कि इसे वानिया के वालिद ने भेजा है। वो मरजान से वानिया को कबीले की हदूद से बाहर निकालने में मदद मांगता है। मरजान अपने शोहर से बेवफाई के खौफ और अपनी दोस्त की आज़ादी के दरमियान कशमकश का शिकार होती है, लेकिन आखिरकार वानिया की मदद करने का फैसला कर लेती है। वीरा, जो मरजान के लिए अपने दिल में उभरते हुए जज्बात को दबाने की कोशिश कर रहा है, इस बात से बेखबर के मरजान एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर कदम रख चुकी है जो इन दोनों की जिंदगियों को बदल सकता है। मरजान वानिया को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है और एक पहरेदार मरजान को वीरा के सामने ले आता है। दूसरी तरफ वानिया काल के हत्थे चढ़ने ही वाली होती है कि रागा कबीले के एक पुराने असूल का फायदा उठाते हुए इससे निकाह का ऐलान कर देता है, ताकि इसे काल की हवस से बचा जा सके। वीरा मरजान की इस बगावत पर शदीद गुस्से में आकर इसे पहली बार थप्पड़ मारता है, जिससे मरजान का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वो वीरा को अपने बाप जैसा जालिम करार देकर खुद को एक जिंदा लाश बनाने का फैसला कर लेती है। वीरा को बाद में अपने इस अमल पर शदीद पछतावा होता है। इसे एहसास होता है कि इसकी सख्ती ने मरजान की मोहब्बत को खौफ में बदल दिया है, मगर वो अपने पेचीदा जज्बात का इजहार नहीं कर पाता। इसी दौरान मरजान और वानिया की दोस्ती मजीद गहरी हो जाती है। मरजान को एक बार फिर वही नकाबपोश अजनबी सिपाही के रूप में मिलता है, जो वानिया को आजाद करवाने के लिए मरजान से दोबारा मदद मांगता है। वो रागा के निकाह के जश्न के दौरान वानिया को भगाने का मंसूबा बनाते हैं। ताहम इस मुलाकात के दौरान मरजान इस नकाबपोश के गाल पर मौजूद एक पुराने जख्म के निशान को पहचान लेती है, जिससे इस पर एक सनसनीखेज इंकशाफ होता है कि ये शख्स कोई अजनबी नहीं बल्कि कबीले का ही कोई अहम फर्द है। इशारा रागा की तरफ है। मरजान को अब यकीन हो जाता है कि वानिया महफूज हाथों में है, लेकिन इस पेचीदा खेल का असल मकसद इसकी समझ से बाहर है। मरजान वानिया को आजाद करवाने के लिए अपनी माँ अलमास और भाई दिलावर को एतमाद में लेती है। वो इन्हें बताती है कि वह नकाबपोश अजनबी, जो दर हकीकत कबीले का ही एक अहम फर्द है, वानिया का हमदर्द है और रागा के निकाह के जश्न के दौरान वो इसे भगा देंगे। दिलावर इस खतरनाक काम के लिए तैयार हो जाता है, जबकि मरजान की माँ अपनी औलाद की हिफाजत के डर से सहम जाती है। दूसरी तरफ मरजान की 18वीं सालगिरह के दिन वीरा का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। मरजान जब इसे बेसन की बर्फी खिलाती है तो वीरा को अपना बचपन और माँ बाप के साथ मनाई गई सालगिरह याद आ जाती है, जिससे इसका दिल नरम पड़ जाता है।
मरजान तोहफे में झरना देखने की फरमाइश करती है, जिसे वीरा कबीले की पाबंदियों के बावजूद पूरा करता है। वादी की एक सुनसान जगह पर झरने के पास वीरा मरजान को मुकम्मल आजादी देता है कि वो बुर्का उतार कर इन लम्हात को जी सके। वहां वीरा मरजान से अपने पिछले सलूक की माफी मांगता है और वादा करता है कि वह इस पर कभी दोबारा हाथ नहीं उठाएगा। मरजान इसे माफ कर देती है और दोनों के दरमियान 1 साल से मौजूद सर्द महर फासले सिमटने लगते हैं। वीरा इसे दोबारा बाचा पुकारने की फरमाइश करता है, जो इस बात की अलामत है कि वो अब मरजान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा तस्लीम कर रहा है। दिन के इख्तिताम पर वीरा इसे इसकी माँ के घर छोड़ देता है ताकि वो अपनी सालगिरह इनके साथ मना सके। रागा के जश्न निकाह वलीमा के दौरान मरजान अपनी माँ और भाई दिलावर की मदद से वानिया को भगाने का एक और खतरनाक जुआ खेलती है, लेकिन बदकिस्मती से काल इसे सरहद पर ही पकड़ लेता है। रागा अपनी मलकियत पर किसी और का हाथ बर्दाश्त नहीं करता और भरे मजमे में काल का हाथ काट कर इसे इबरतनाक सजा देता है, जिससे वानिया मजीद दहशत ज़दा हो जाती है। मरजान को डर था कि वीरा इसे या दिलावर को सख्त सजा देगा, लेकिन वीरा हैरत अंगेज तौर पर नरमी बरतता है। वो मरजान को समझाता है कि इसकी ये हमदर्दी इसके अपने घर वालों की जान ले सकती है, जिससे मरजान को वीरा के अंदर छुपे एक जिम्मेदार शोहर का एहसास होता है। वीरा जब 3 दिन के सफर से वापस लौटता है तो इनके दरमियान मौजूद तमाम बर्फ पिघल जाती है। वो रात इनके रिश्ते का खूबसूरत तरीन मोड़ साबित होती है, जहां वीरा अपनी जिंदगी की तमाम महरूमियों और कर्ब का एतराफ मरजान की गोद में सर रख कर करता है और इसे अपनी जिंदगी का वाहिद सुकून करार देता है। मरजान भी अपने शोहर की शिद्दत मोहब्बत को महसूस करते हुए अपना आप इसे सौंप देती है और ओहद करती है कि वो वीरा को इस अंधेरी दुनिया से निकाल कर दोबारा अब्दुल्ला बनाएगी। मरजान वीरा की मोहब्बत में सरशार नजर आती है, लेकिन वीरा अपनी पहचान और मकसद की खातिर मरजान से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह इसे अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता। दूसरी तरफ वानिया झील में गिर जाती है और रागा इसे अपनी जान पर खेल कर बचाता है, जिससे मरजान को लगता है कि रागा के दिल में वानिया के लिए सच्ची मोहब्बत है। लेकिन जल्द ही रागा की सफाकियत इस वक्त सामने आती है जब वो वीरा को बताता है कि वानिया से उसका निकाह और मोहब्बत महज एक खेल है, ताकि वो इसके ISI एजेंट वालिद वजदान खान को काबू करके मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। वानिया ये सब सुनकर टूट जाती है और रागा को थप्पड़ मारती है, लेकिन रागा इसे मजीद डराता धमकाता है। वीरा भी रागा के नक्शे कदम पर चलते हुए मरजान को नीचा दिखाने और इससे प्यार का इनकार करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो इनकी मोहब्बत को महज जिस्मानी जरूरत का नाम दे देता है ताकि मरजान इससे दूर हो जाए। ताहम मरजान हिम्मत नहीं हारती और वीरा को चैलेंज करती है कि वो इसके दिल में बस चुकी है और वो चाहकर भी इसे नहीं निकाल सकता। कहानी के इख्तिताम पर एक बड़ा मोड़ आता है जब इनकी बस्ती पर फौज के हमले की खबर मिलती है, जिससे सबकी जिंदगियों में हलचल मच जाती है। बस्ती पर फौज के अचानक हमले के बाद अफरा तफरी मच जाती है और वीरा मरजान को इसकी माँ के घर भेजकर खुद लड़ने चला जाता है। कैप्टन अमान की क़यादत में फौजी दस्ता मरजान के घर वालों को अपनी हिफाजत में ले लेता है, जहां कैप्टन की नजर 15 साल मासूम गुल पर पड़ती है, जो फौजियों से शदीद खौफजदा है। दूसरी तरफ वीरा को मालूम होता है कि रागा दरअसल एक जासूस था जिसने फौज को इनके ठिकाने की खबर दी। रागा वीरा को समझाने की कोशिश करता है कि इसने बदले की आग में गलत रास्ता चुना है, लेकिन वीरा के हथियार डालने की असल वजह मरजान के आंसू बनते हैं। वीरा को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है जबकि मरजान इसे दूर जाता देखकर तरफ उठती है। 3 दिन आर्मी कैंप में गुजारने के बाद कैप्टन अमान इन्हें रिहा करके अमाद बंगश नामी एक पुरअसरार शख्स के हवाले कर देता है, जो इन्हें एक शानदार घर में मुंतकिल कर देता है। अमाद इन सबका वाद सहारा बनने का वादा करता है और बताता है कि वो किसी से किया हुआ वादा निभा रहा है। यूं मरजान और उसका खानदान एक नई मगर अनजान जिंदगी की दहलीज पर कदम रखते हैं। जेल की काल कोठरी में कैद वीरा से जब जनरल शहीर मुलाकात करते हैं तो वो इसे इसकी असल शनाख्त याद दिलाते हैं और ये दिलखराश इंकशाफ करते हैं कि वीरा ने जिस डॉक्टर हसन को रागा के बम धमाके में निशाना बनाया, वो वही शख्स था जिसने बचपन में वीरा की जान बचाई थी। ये हकीकत वीरा की रूह को झंझोड़ के रख देती है और वो पछतावे की आग में तड़प उठता है। दूसरी तरफ मरजान मुर्दा हालत में अमाद रागा के घर रह रही है, जहां अमाद इस पर अपनी असल हकीकत जाहिर कर देता है कि वो कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि मेजर अमाद बंगिश है, जिसने मिशन की खातिर रागा का रूप धारा था। जब मरजान अपने शोहर की सजा के बारे में पूछती है तो अमाद के उम्र कैद या सजाए मौत के अल्फाज इसे बेहोश कर देते हैं। अस्पताल पहुंचने पर एक नया इंकशाफ सामने आता है कि मरजान उम्मीद से है। ये खबर अमाद और इल्मास के लिए खुशी के साथ साथ फिक्र का बायस बनती है कि वो इस मासूम जान और मरजान के मुस्तकबिल का बोझ कैसे समेटेंगे। मरजान को जब अपनी जिंदगी में आने वाली नई नन्ही जान बच्चे की आमद का इल्म होता है तो वो खुशी होने के बजाय वीरा की कैद और मुस्तकबिल की महरूमियों को सोचकर टूट जाती है। लेकिन अमाद इससे वादा करता है कि अगर वो अपनी और बच्चे की सेहत का ख्याल रखेगी तो वीरा को आजाद करवाने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ
जेल की तन्हाई में वीरा पछतावे की आग में जल रहा है और माजी की यादें इसे अपनी गलतियों का एहसास दिला रही हैं। जब इसे अम्माद से मालूम होता है कि वो बाप बनने वाला है, तो इसकी तड़प मजीद बढ़ जाती है और वो अपनी औलाद को दहशतगर्द की पहचान से बचाने के लिए तड़प उठता है। इसी दौरान मरजान की मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त वानिया से होती है, जो इसे बताती है कि इसका शोहर अमाद ही दरअसल वो रागा था, जिसने इसे तहफ्फुज़ दिया था। वानिया की बातें मरजान के दिल में उम्मीद की एक शम्मा रोशन कर देती हैं। कहानी में एक बड़ा मोड़ इस वक्त आता है जब वीरा जनरल शहीर के सामने एक डील रखता है। वो मुल्क में छुपे बड़े दहशतगर्दों, सियासतदानों और गद्दार फौजी अफसरान के राज फाश करने के बदले अपनी आज़ादी का मुतालबा करता है, जिससे इसकी जिंदगी और मरजान के साथ मुस्तकबिल की एक महूम सी राह निकलती नजर आती है। वीरा की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर फौज मुल्क दुश्मन अनासिर और गद्दारों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वीरा को ताहाल कैदो तन्हाई और जिस्मानी तशद्दुद का सामना है, जहां वो अपनी दिले जाना मरजान की यादों के सहारे जिंदगी के दिन काट रहा है। मेजर अम्माद बंगश यानी रागा वीरा के अंदर छुपे पछतावे को महसूस करते हुए इसकी हमदर्दी में एक बड़ा कदम उठाता है और अपनी फौजी साख खतरे में डालकर रात की तारीकी में वीरा को खुफिया तौर पर अस्पताल ले जाता है, जहां मरजान ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया होता है। जंजीरों में जकड़ा वीरा जब पहली बार अपने लखते जिगर को अपनी बाहों में लेता है, तो इसकी ममता और बाप की तड़प आंसू बनकर बह निकलती है। वो अपने गुनाहों की बेड़ियों को महसूस करते हुए खुद को इस पकीज़ा खुशी के नाकाबिल समझता है और बेहोश मरजान के माथे पर अलविदाई बोसा देकर वापस काल कोठरी लौट जाता है। अम्माद वीरा को ये उम्मीद दिलाता है कि वह इसे दोबारा अब्दुल्ला मीर बनाकर एक नई जिंदगी की राह पर चलाएगा, मगर वीरा इसे अपने एहसास जुर्म के तले दबा हुआ है और समझता है कि इसके गुनाहों की कोई माफी नहीं, चाहे वो दुनिया हो या आखिरत। मरजान के बेटे कल्बे अब्दुल्ला की पैदाइश के 1 साल बाद वीरा ताहाल कैद में है और इसे अपने बेटे को देखने की शदीद हसरत है, जबकि अम्माद रागा ने भी अल्लाह की नेमत से नवाजे जाने पर अपने बेटे का नाम यारिम रखा है। कहानी में एक सनसनीखेज मोड़ तब आता है जब दहशतगर्द एक फौजी अफसर के बेटे को अगवा करके इसके बदले वीरा की हवालगी का मुतालबा करते हैं। अम्माद वीरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वीरा एक मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए खुद को मौत के मुंह में धकेलने का फैसला कर लेता है। तबादले के मुकाम पर कैप्टन अमान की मौजूदगी में बच्चे को आजाद करवा लिया जाता है, लेकिन वीरा अपने साबका साथियों के हत्थे चढ़ जाता है, जो इसे गद्दारी की सजा देना चाहते हैं। किस्त के इख्तिताम पर जब एक नकाबपोश दहशतगर्द वीरा के माथे पर बंदूक रखकर गोली चलाता है, तो वीरा मरजान और अपने बेटे की यादों को दिल में बसाए मौत के लिए तैयार खड़ा होता है, जिससे कहानी एक इंतहाई कर्बनाक और नाजुक मोड़ पर रुक जाती है। वीरा पर होने वाले कातिलाना हमले के वक्त अमान और इसकी टीम बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों को पसपा कर देती है, लेकिन कहानी में असल तनाव उस वक्त पैदा होता है जब इंकशाफ होता है कि मगवी बच्चे के जिस्म पर एक टाइम बम नस्ब है। वीरा अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए अपनी और सिपाहियों की जिंदगी दांव पर लगाकर बम को नकारा बनाता है और एक सिपाही अमान की जान बचाते हुए खुद गोली खाकर शदीद जख्मी हो जाता है। अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन के बाद मेजर अम्माद बंगश अपनी तमाम तर सलाहियतें बर वक्त इस्तेमाल करते हुए आर्मी चीफ और दिगर आला हुकाम को कायल कर लेता है कि वीरा अब्दुल्ला मीर अब एक बदला हुआ इंसान है और इसकी महारतों को मुल्क के मफाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। अमान की जाती जमानत पर वीरा को माफी मिल जाती है और इसे 1 साल की खुफिया ट्रेनिंग के बाद बतौर एजेंट फौज में शामिल करने का फैसला होता है। किस्त के इख्तिताम पर वीरा अपनी दहशतगर्द की पहचान लंबे बाल और दाढ़ी खत्म करके दोबारा अब्दुल्ला मीर बन जाता है और अम्माद की सच्ची दोस्ती के तुफैल अंधेरों से निकलकर एक नई जिंदगी और अपने खानदान मरजान और कलब से मिलने की उम्मीद की जानी पहला कदम उठाता है। 1 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद अब्दुल्ला पाक फौज के बाकायदा सिपाही के तौर पर हलफ उठाता है और जनरल शहीर और मेजर अम्माद बंगश की मौजूदगी में एक नई जिंदगी का आगाज करता है। अम्माद की खुसूसी मनसूबाबंदी के तहत अब्दुल्ला और मरजान का 3 साल बाद जज्बाती मिलाप होता है, जहां मरजान अपने बाचा को बदले हुए रूप यानी यूनिफॉर्म और क्लीन शेव में देखकर खुशी से निहाल हो जाती है। इस खूबसूरत रात में दोनों अपनी तमाम तर तलखियां और जुदाई के दुख भुलाकर एक दूसरे की आगोश में सुकून पाते हैं। ताहम अब्दुल्ला के दिल में अपने माजी के गुनाहों का बोझ अब भी इसे अल्लाह के सामने झुकने से रोक देता है, जिसे मरजान अपनी मोहब्बत और फहम से दूर करती है। वो इसे रब की सिफ्ते रहीमी का यकीन दिलाती है, जिसके बाद अब्दुल्ला पहली बार सच्चे दिल से सजदा रेज होकर अपने रब से बख्शिश मांगता है और इसके दिल का हर वसवसा आंसू बनकर बह जाता है। इस कहानी का इख्तिताम अब्दुल्ला की जिंदगी में आने वाली इन तमाम तब्दीलियों का समर है, जिनके लिए इसने अपने माजी की भारी कीमत चुकाई। 1 साल की कठिन फौजी तरबियत मुकम्मल करने के बाद जब अब्दुल्ला अपनी नई पहचान और वर्दी के साथ मरजान के सामने आया, तो बरसों की जुदाई के जख्म मरजान की आंखों से बहने लगे। खुशी के आंसुओं में ढल गए और इनका ये मिलाप महज 2 इंसानों का नहीं, बल्कि हक और सच्ची तौबा की जीत साबित हुआ। अम्माद बंगश ने न सिर्फ एक दोस्त बल्कि एक भाई का हक अदा करते हुए
عبداللہ کا معاشرے میں باعزت مقام دلایا اور ان کی دوستی نے ثابت کیا کہ اگر خلوص ساتھ ہو تو ایک گناہ گار بھی راہ راست پر آ کر ملک و قوم کا سرمایہ بن سکتا ہے۔ کہانی کا کلائمیکس گل اور امان کی شادی پر ہوا، جہاں مزاح، شرارت اور محبت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ خاص طور پر عبداللہ کا اپنے بیٹے کلب کے ساتھ وہ جذباتی تعلق، جس میں باپ بیٹے کی معصومانہ تکرار نے قارئین کے دل جیت لیے۔ عبداللہ کا اپنے رب کے حضور رو کر معافی مانگنا اور پھر ایک ایجنٹ کے طور پر اپنے پہلے مشن کے لیے امان کے ساتھ عزم مصمم کرنا، اس بات کا اعلان تھا کہ ویرا کا طریق باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، اور اب عبداللہ سجاد میر اپنی دل جانہ مجان اور بیٹے کے ساتھ ایک ایسی روشن زندگی کا آغاز کر رہا ہے جس کی بنیاد وفا، ایمان اور وطن کی محبت پر قائم ہے۔